Hello all my dear students, good morning to all of you. Welcome in today's class, and as you know, I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher, welcoming you to all once again to your official YouTube channel, that is Ajay Tiwari Science Classes, on the behalf of Subrat Singh Chinnal Academy, Jaunpur. And as you know, at present your chapter number 11, that is force and pressure is learning, and in previous videos we have discussed about the force as well as conditions for forces, effect of force, and general introduction of types of force. So today we will continue that topic of the video number 1, that was type of forces, in which we have told you that there are two categories of the forces. Those are contact force and non-contact force. As it clear from its name, in contact force there is a physical contact that may be direct or indirect between the two objects. It means that if there is a physical contact that may be direct or indirect between two objects, that condition will showing the contact force. And if there is no physical contact directly or indirectly between the two objects, that condition will show नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सपोज मान के चलते हैं बेटा, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है. दिस वाज द ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट नंबर 2, एंड इफ देयर इज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज टू, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, इनके बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट है, या एक दूसरे के संपर्क में ये हैं, सो दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द कॉन्टैक्ट फोर्स. If suppose this was the object number 1 and this was the object number 2 and there is no physical contact between these two, that condition will lead to non-contact force. So we can write here actually types of force. There are two categories of the forces, two categories of the force. Those are contact force, and non-contact force. Contact force and non-contact force. If we considering the types of force, then we can say that force is of two types. Those are contact force, in which there is a close contact that may be direct or indirect between the two objects, and another one that is non-contact force. For that there is no any requirement of the direct or indirect contact between the two objects. Okay, and so we are going to discuss about the first contact force. Contact फोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे आप डिफाइन करेंगे. व्हेन देयर इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, व्हेन देयर इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, व्हेन देयर इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन two objects, when there is direct or indirect physical contact between two objects, they represents simply or apply contact force on each other. ठीक है बेटा, यानी हम क्या कह सकते हैं, जब कभी भी किसी भी दो वस्तुओं के बीच कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स. अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें, सो देयर आर टू मस्कुलर फोर्स that is also known as applied force, and the second one is friction. यानी कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा दो तरह का है, एक
जिसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स या अप्लाइड फोर्स, और दूसरा जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। ओके बेटा, अगर हम बात करें, अब आप कहेंगे सर ये आपने 2 लाइन की डेफिनेशन बता दी, तो हम आपको एक शॉर्टकट के वे डेफिनेशन बता देते हैं यहाँ से। और फोर्स दैट एक्ट ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। यानी अगर आप बात करें तो आपका ये जो ब्लू, या आप कह सकते हैं आपका येलो चौक से जो लिखा हुआ है, वो आपकी शॉर्टकट की डेफिनेशन है। अगर ऊपर वाला आप नहीं समझ पा रहे हो, समझ जाओगे, कुछ है नहीं, आप नीचे वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो। फोर्स दैट एक्ट ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। हियर वी आर स्टार्टिंग विथ मस्कुलर फोर्स, और वी कैन राइट इट एज अ अप्लाइड फोर्स। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है, मस्कुलर, इट मीन्स दैट देर इज समथिंग रिलेटेड विथ आवर मसल्स, ओके, और वी आर अप्लाइंग समथिंग। सपोज हम यहाँ से ये डस्टर उठा रहे हैं बेटा, ये हम उठा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम एक फोर्स लगा रहे हैं हमारे हैंड्स के द्वारा, या हमारे हाथ की जो मसल्स हैं उनके द्वारा एक फोर्स लगाया जा रहा है, एंड दैट फोर्स इज सिंपली व्हाट? muscular force. Let's consider some live examples. Suppose you have joined the gym for just building your muscles. आप अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए बेटा जिम ज्वाइन किए। अब उसमें आपने देखा कि बड़े बड़े लोहे के रॉड लगे हुए डंबल्स आप लगातार उठाए जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके मसल्स पे फ़र्क पड़ रहा है ना, मसल्स में क्या हो रहा है, वो एक्टिव हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, और इसके साथ साथ आप एक पर्टिकुलर वेट को लिफ्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे द्वारा या हमारे हाथ के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। इसी तरह से आपने देखा कोई रास्ते से जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई, अब वो बैठ के नहीं जा पा रहा, उसको घसीट के ले जा रहा है, अब लेके जा रहा है, उसको पसीने पसीने एकदम हो गए, बिकॉज ही इज अप्लाइंग अ पर्टिकुलर फोर्स। सपोज यू आर जस्ट पुलिंग एनीथिंग, you are just walking with your doggy, and your doggy just running in front of you, and you have just handling it by just pulling it towards yourself. Okay, there is a lot of examples are there by means of which you can say that yes, we are applying the muscular force. Suppose we are just throwing the ball, again we can say that we are applying the muscular force here. So muscular force we can say that here, or applied force we can say that these are the force applied by our muscles, or we can say that leg, hand and fingers. ओके, यानी एक ऐसा फोर्स जो हमारे हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा और इसके साथ साथ फिंगर्स के द्वारा लगाया जाए। ठीक है, कैसे? सपोज आपको किसी ने आपके बर्थडे पे डेयरी मिल्क का एक बढ़िया सा केक गिफ्ट किया या चॉकलेट गिफ्ट किया। अब चूंकि वो एक प्लास्टिक रैपअप में है, उसको आपको ओपन करना है। आप उसको फिंगर्स की मदद से ओपन करोगे। कुछ लोग हाथ से नहीं खोल पाते तो दांत से भी खोलते हैं। तो अगर आप टीथ से भी कुछ करके लगा रहे हो ना, तो वहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट अगर आप अपने हाथ से टीयर कर रहे हो उस चॉकलेट को खाने के लिए, वो भी एक मस्कुलर फोर्स है। आप सपोज मूंगफली चबा रहे हैं, ग्राउंडनट जिसे कहते हैं, उसको तोड़ रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स, दैट इज ऑल्सो यू आर अप्लाइंग द मस्कुलर फोर्स। आपको एक बॉल दे दी गई, उसको आप प्रेस कर रहे हो, you are also applying the muscular force. So these are the forces that is just applied by our hands, it may be legs or it may be fingers, and due to tension of our muscles, due to tension of
आवर मसल्स। ये फोर्स जनरेट क्यों होते हैं? ये फोर्स जनरेट होते हैं, दीज आर जनरेटेड ड्यू टू टेंशन ऑफ आवर मसल्स। सपोज we are going to lift a heavy object, then our brain will send the signal, वो कैसा सिग्नल रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, सो ब्रेन विल सेंड द सिग्नल किसको? टू द मसल्स एंड दे विल कॉन्ट्रैक्ट and force will be applied ठीक है, सिंपल सा है। मान के चलते हैं आप अपने घर पे थे, आपके घर पे एक कोई पर्टिकुलर सामान पड़ा हुआ था, सपोज वो चावल की बोरी थी। आपकी मम्मा ने कहा कि बेटा इसको उठा के आप कहीं और रख दीजिए। अब आप उसको उठाना चाहते हैं, तो आप उसको उठाना चाहते हैं तो आपके हाथ को सिग्नल कौन करेगा? आपका ब्रेन करेगा। अब ब्रेन के पास बेटा एक मोटर नर्व्स होती है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको बताया जाएगा। ब्रेन सेंड द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रीचेस टू योर ऑर्गन दैट हैव टू अप्लाई द फोर्स थ्रू नर्व्स। वो नर्व्स कौन सी होती है? मोटर नर्व्स होती हैं। वो हम आपको आगे चल के बताएंगे, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। आपकी बॉडी में सेंसरी नर्व्स होती हैं जो आपके सेंस ऑर्गन से, जैसे अगर आपके यहाँ पे कुछ बहुत ठंडा लग रहा है तो आपके ब्रेन तक आपको पता चल जाता है ये ठंडा है। आपको तीखा लग रहा है तो आपको पता चल जाता है कि ये तीखा है, ठीक है। आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छू लिया, आपको पता चल गया ये गर्म ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ना है। तो ये सारा सिग्नल सेंसरी नर्व लेके जाती है, यानी आपके सेंस ऑर्गन्स सच एज नोज, स्किन एज वेल एज आईज, ईयर, ये सभी सेंस ऑर्गन है बेटा। एंड ऑल दीज कैरी द मैसेजेस टू द ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्व एंड ब्रेन सेंड द रिस्पॉन्सेज थ्रू मोटर नर्व्स टू दीज पार्ट्स। Okay, so we are going to lift a particular object, then our brain will signal that you all have to apply the force now and our muscles will contract। और जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये टेंशन डेवलप होगा एंड ड्यू टू दैट टेंशन वी विल एबल टू अप्लाई द फोर्स। सो दैट इज सो सिंपल कॉन्सेप्ट। कुछ भी नहीं है बेटा इसमें कि केवल और केवल मसल्स की टेंशन है और उस मसल्स की टेंशन की वजह से हमारी हमारी बॉडी या हमारे हैंड्स या हमारे लेग्स फोर्स जो कि मस्कुलर है या अप्लाइड है उसको लगा पाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैटेगरी नंबर 1, दैट इज व्हाट मस्कुलर फोर्स और अप्लाइड फोर्स। आई होप दैट आफ्टर जस्ट रीडिंग ऑल दीज लाइन्स देयर विल नॉट बी एनी डाउट। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट and that screenshot will help in the notes making process। And now I am moving towards your next topic, that is friction। ओके बेटा, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, आप सभी इसके बारे में अवेयर हैं। तो दिस इज द फोर्स दैट अपोजेस द motion of an object। force that opposes the motion of an object। अगर कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को नहीं होने दे रहा है या उसके मोशन को अपोज कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? ये बेटा है फ्रिक्शन। आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन के जो शूज होते हैं, इन द शूज ऑफ द स्पोर्ट्समैन देयर इज ए स्पाइक and that spike is just simple for friction। वो फ्रिक्शन कर सके, स्लाइड ना करें, गिरे ना, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड हो, इस वजह से वहाँ पे क्या बना दिए गए? स्पाइक्स बना दिया गया। ठीक, लेट्स कंसीडर
दीज आर द टू सरफेसेस। अब इनके बीच में क्या लग रहा है बेटा, इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, और वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है। या मान के चलते हैं ये एक ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, और इसको मूव करने के लिए बेटा फोर्स लगाना पड़ रहा है। हम आगे की तरफ इसको धकेल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा फोर्स इन दोनों के सरफेस के बीच में काम कर रहा है जो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आगे बढ़ने से रोक रहा है, एंड दैट फोर्स इज व्हाट, फ्रिक्शन। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट हियर फॉर फ्रिक्शन दो चीजें होनी चाहिए, सरफेस, फ्रिक्शन के लिए क्या क्या नेसेसरी है बेटा, पहला एक सरफेस होगा, सरफेस दो हो सकता है, देयर में बी स्मूथ सरफेस और देयर में बी रफ सरफेस। इफ देयर इज रफ सरफेस हियर देयर विल बी फ्रिक्शन, or we can say that high friction, and if there is smooth surface there will be low friction। ठीक है, ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको बताता हूं। यानी जो सबसे बड़ी चीज है, फॉर फ्रिक्शन देयर शुड बी अ पर्टिकुलर सरफेस एंड देयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट। इट मीन्स दैट ऑन द कंक्लूजन साइड वी कैन से दैट फॉर फ्रिक्शन देयर शुड बी क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इसी वजह से तो ये बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट जरूरी है। ठीक है, और ये फोर्स जनरेट क्यों होता है, एंड जनरेटेड ड्यू टू इररेगुलरिटीज। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आपके घरों में टाइल्स लगी हुई है और उस पर पानी गिर जाता है तो आप फिसल जाते हो। ठीक है, बारिश के सीजन में आप बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं, आप फिसल जाते हैं, बिकॉज देयर द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी लो ड्यू टू स्मूथ सरफेस। एंड इन द रेनी सीजन all these accidents may appear, but when there is a summer season or we can say that winter season, you can easily walk due to rough surfaces। it means जहाँ rough surface होगा वहाँ पे friction की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जहाँ पे smooth surface होगा वहाँ पे friction की वैल्यू कम होगी। अब हम देखेंगे cause of friction। Here we will consider two examples। Example number 1, if we observe two ऑब्जेक्ट्स, मान के चलते हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, या अभी हम एक ही लेके चलते हैं। सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इफ वी सी अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखें, वी विल ऑब्जर्व दैट देयर आर मैनी और न्यूमरस इररेगुलरिटीज और दीज आर वेरी रफ। बाहर से जो आपको चमकता हुआ दिख रहा है ना, जब अगर अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो वो कैसे दिखेगा, वो दिखेगा आपको इररेगुलर दिखेगा। Okay, so suppose this was the surface number 1 and this was the surface number 2 and both were smooth, and this is the object number 1 and obviously this is the object number 2। कोई डाउट तो नहीं, दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, दोनों स्मूथ दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से इनको देख रहे हैं तो ये हमको कैसे दिख रहे हैं, रफ दिख रहे हैं। एंड दिस वन इज एक्टिंग एज अ हिल एंड दिस वन इज एक्टिंग एज ए वैली, यानी ये हिल और वैली की तरह काम कर रहे हैं। एंड व्हेन दे विल स्लाइड ओवर ईच अदर, देयर मोशन विल बी अपोजिज, एंड अपोजिज मोशन इज ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी ये दोनों जब क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे थे, तो क्या जनरेट हो रहा था, फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन की वजह से इनका मूवमेंट क्या हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। तो इसको अब हम लिख देते हैं, आप यहां से नोट्स बना लेंगे। पहला पॉइंट, एनी सरफेस however smooth but under microscope there are numerous irregularities
irregularities like hills and valley, like hills and valley, and when they will slide over each other, they will slide over each other, their motion will be opposes, their motion or movement will be opposes by फ्रिक्शन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और एग्जाम्पल की। उसमें हम आपको बताएंगे बेटा कि अगर दो सरफेस ऐसे हैं जो एक ही तरह के हैं, वो स्मूथ हैं, फर्क नहीं पड़ता, वो रफ हैं, देयर इज नो इम्पैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसे हैं, बट when they are in close contact, let's consider once again, this was the surface number 1, this is the surface number 2, and these two surfaces are in the close contact with each other, and due to this close contact there is a attraction between the atoms and molecules of these two objects, यानी ये ऑब्जेक्ट एक था, ये ऑब्जेक्ट दूसरा था, ये एक दोनों के संपर्क में आए, इनके संपर्क में आने की वजह से जो इनके एटम्स थे या मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलकर ये बने थे, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके स्टिक हो गए। एक बार फिर से सुनिए, व्हेन देयर इज ए close contact between the two objects, their atoms and molecules are attracted by each other, that's why they stick, and when we will slide them over each other, they will opposes the motion of each, यानी अगर दो ऑब्जेक्ट एक कांटेक्ट में थे, इनको हम क्या कर रहे हैं, एक को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, दूसरे को इधर पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इनका जो मोशन है इसको कोई ना कोई अपोज करेगा, और जो अपोज करता है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, वही फ्रिक्शन है। बाकी ये पूरा एक चैप्टर है, उस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट आर द सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम कहेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। चूंकि यहाँ पे हम फोर्स पढ़ रहे हैं और फोर्स में एक टाइप था कॉन्टैक्ट फोर्स का, कॉन्फ्रिक्शन, इस वजह से आपको बता दिया गया।